डेविड प्रोफेशनल यूट्यूबर। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम चौहान और आप देख रहे हैं सीबीसी कॉमर्स क्लासेस। आज स्पेशल एपिसोड संडे टॉक शो के अंदर मेरे प्रीवियस बैच के लास्ट बैच के स्टूडेंट, मेरा फेवरेट, मेरा आदि आपके सबके सामने है। आदि से मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा जो शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी और ये अपना एक्सपीरियंस बताएगा, क्लासरूम का एक्सपीरियंस, पढ़ने का एक्सपीरियंस और बहुत सारी बातें होंगी। तो आदि, सबसे पहले कुछ अपने बारे में बतलाओ कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है और तुम्हारी 10th में परफॉर्मेंस क्या थी, 11th में तुमने क्या फेस किया और 12th में मतलब कैसे एंटर किए, तो क्या स्ट्रैटेजी रही थी तुम्हारी। So let me introduce you by my name, full name. My full name is Aditya Sharma, and from my 10th background, I scored 81% in CBSE boards. ग्रेट। But when I suddenly choose commerce and came into 11th, unfortunately, pandemic happens. हाँ। And it was just online classes going on, and I didn't took that seriously. I took so much fun in the while classing. I slept while taking online classes. So after 6 or 7 months when the exams on head, so it feels me that I'm so backward. Okay. From my what can I say, ability, I'm so back. Then I started searching for the tuition classes for offline because I need really a very big support. So I just went at so many tuition classes, but nowhere I just feel very comfortable. Then I got the number of Subham sir, and I went him and contact with him, and literally my experience was that I was very low in 11th, but in 11th ending means I went him means 4 or 5 months ago from my examination, and he really made me as what can I say that average, upper than average. I will be able to score just near to the topper. I just started giving competition in classes. I just giving fast answers. Actually, let me tell you my experience. His teaching skill and his teaching techniques, his communication boost you and gives you immunity in your studies, that you will able to grow yourself as much as you can, and you start loving studying. That was my experience till 11th examination. And when it's about to 12th, so he motivates us. He motivates every student in the class to score very good marks, and he just doing hard work with us always, and he really grows up, and we were full of confidence that we can score a very good marks in 12th. Thank you so much. Actually, commerce is too easy. The subjects of commerce like accountancy, economics, and business studies is literally very easy subject, and these are the realistic subjects. It means all the subjects belongs from your personal life, so it becomes very easy to make understand students. So it is very good that you appreciate me and you appreciate my skill. But Adi, मैं ये जानना चाहता हूँ, बच्चे भी ये जानना चाहते हैं कि जब आप 12th में आते हो, तो अभी जैसे कि तुम्हें पता था तुम्हारे टाइम पे कोरोना आया और कोरोना में कुछ समय पढ़ाई चली और फिर ऑफ कोर्स ऑनलाइन क्लासेस होती रही, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में तुम्हें क्या डिफरेंस फील होता है और मतलब क्या अंतर तुम्हें नजर आता है। Actually, the main impact between the offline classes and online classes. Online classes in which you just online connected from the teacher. है ना? You have limited time period and you need to adjust with teachers. But in offline classes, the teacher needs to adjust with you. You can ask your question on that particular point of time. है ना? You can At that point, okay. When the teacher is physically in front of you, so you will able to catch up very earlier, comparatively to online classes. Okay. That was my in case. है ना? So I was able to understand very low in online class. That's why I went up for offline class to you. Okay. और तो चलो, ये तो इनकी अपनी पर्सनल फीलिंग्स है, ये आपकी डिफर हो सकती है, लेकिन मेनली ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में जब आप इंडिया के अंदर बात कर रहे हो तो थोड़ा सा ऑनलाइन का इम्पैक्ट कम हो जाता है।
और ये सभी बच्चों के साथ होता है, सिर्फ आदि ही नहीं, मेरे ख्याल से जो इससे भी टॉपर्स अगर मैं बोलूँ, या फिर आदि भी वन ऑफ द टॉपर स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन बट अगर मैं इसके आगे भी बोलूँ तो फिर और भी बच्चे थे जो मतलब बोलते हैं कि सर ऑनलाइन थोड़ा सा इंडिया के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है, और थोड़ा सा रिसोर्सेज नहीं हो पाते हैं, या बहुत पर्सनल कांटेक्ट नहीं बन सकता है टीचर्स के साथ, या टीचर्स के पास भी रिसोर्सेज, सबसे मेन चीज़ टीचर्स के पास ही रिसोर्सेज की कमी है कि वो भी जो क्लासेस ले रहे हैं वो उनके पास फुल रिसोर्स नहीं है, मोबाइल को ऊपर रख करके नीचे लिख रहे हैं, वो ब्लर आ रहा है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, आवाज़ कट के जा रही है, तो उनके पास ही प्रॉपर रिसोर्स नहीं है, तो बच्चों की तो बात ही छोड़ दो आप। और इंडिया के अंदर थोड़ा फाइनेंशियली भी वीक है, तो थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ। हाँ, टेक्नोलॉजी भी फेस एनी सिचुएशन लाइक दिस ना। हाँ, और अच्छा, तो आदि अगर जैसे कि इस बार भी मतलब अभी सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव आने वाला है, ठीक है, और बच्चे जो एंटर किए हैं, 12th का रिजल्ट तो आप लोगों का पता ही है। अच्छा, आप अपने 12th के रिजल्ट से कितना सहमत हैं कि आपका जो 12th का रिजल्ट है वो थोड़ा सा एवरेज बेसिस पे जा रहा है, 10th 11th और 12th इन तीनों को ही मिलाकर के आपका फाइनलाइजेशन रिजल्ट बनेगा, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं 10th का जो इम्पैक्ट है वो 12th पे आ रहा है? चलो ठीक है, आपके गुड स्कोर थे तो आपको शायद अच्छा फील हो रहा होगा, लेकिन वो बच्चे जिनका स्कोर नहीं था 10th के अंदर, लेकिन वो 12th में बहुत अच्छा कर सकते थे, क्योंकि 10th तक हमें कॉमर्स से कोई मतलब नहीं होता है। लिटरली सही बात नहीं, 11th में आकर के हमें कॉमर्स इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, तो मतलब इसका तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या स्कीम जो मतलब मार्किंग स्कीम है या मार्किंग क्राइटेरिया जो है वो कितना प्रतिशत अच्छा है? जो मेरी सोच है इसके लिए, बिकॉज 10th इज योर फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। Okay. यू प्रिपेयर योर बेस देयर, हाँ. यू फेस योर एग्जाम देयर, यू शो योर कंसिस्टेंसी देयर हाँ, कि हाँ. हाउ मच यू कैन प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। Okay. सो द 10th board will be so supportable for your 12th exam results. Okay. As to me, I scored 81%. Uh-huh. So I Good. was really supposing that I may got 80 or 85%, because, and one thing more, I didn't took seriously internal exams like school UT हो गए, आपके pre boards हो गए. I didn't took it so seriously. I was thinking that I will prove myself in 12th boards examination, but Corona didn't give us chance to prove ourselves, and now I am so worried about it कि if I will go down here, so it will may reduce my result. तो सीधी साफ बात है, इनका कहना यही है कि भाई अगर आप इस बार 12th में हो तो आपको शुरू से ही सीरियस होकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके यूटी जो यूटीज़ होंगे, जो इंटरनल जितने भी होंगे एग्जामिनेशन, चाहे हाफ ईयरली हैं, ये आपके जो मार्किंग है ये बहुत मायने रखेंगे आपके फाइनल रिजल्ट बनाने में। अगर इस साल भी ये पैंडमिक बना रहा और थर्ड वेव आने की जो आशंका है, अगर ये चीज़ रही तो ये शायद हो सकता है कि बच्चों को इम्पैक्ट करे, तो बच्चों को पहले से ही होशियार हो जाना चाहिए। सही बात है, यू शुड बी प्रिपेयर फर्स्ट, है ना, यू शुड मेक योर बेस प्रॉपर, ताकि आप अपने आप को फ्यूचर में प्रेजेंट कर सके कि हम बैक में क्या थे, आप बेस्ट बना सकते हो अपने आप। तो ये मेन चीज़ है जो आप सबको ध्यान में रखना है अगर आप नेक्स्ट सेशन के स्टूडेंट हैं। अच्छा आदि, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th, यस, ठीक है, एंड यू आर नाउ सर्चिंग फॉर द कॉलेजेस एंड you are searching for the best course which may give you a best life ahead. तो अब आप क्या मतलब कि अब आपके क्या क्राइटेरिया हैं और आप क्या सोच रहे हैं, अब आपको क्या करना है? तो actually firstly I would like to search for the government college, but I'm not sure about my result. That's why I have taken beside the private colleges also. Okay. I searched for the Galgodias University in Greater Noida. So I would like to pursue BBA from there, and good. With BBA I would pursue my CAT also. I will prepare for the CAT examination also. Okay. Because I want to make myself good place. So then CAT I want to choose IMM, from which I can pursue my MBA, which gives me a better stage to get good salary, raise my life standard, because everyone needs a good standard of living na. So that's why I will do hard work for it. अच्छा आदि, सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, पता क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें बताता हूँ, लिटरली ये बात बहुत सीरियस है। जो मीडियम क्लास के स्कूल होते हैं, स्कूल्स जो शायद अपने आस पड़ोस में हैं, या जहाँ से एक एवरेज फैमिली का बच्चा, जो एवरेज इनकम है जिस फैमिली की, उसका बच्चा जहाँ पे परस्यू कर रहा है पढ़ाई को, वहाँ टीचर्स का कितना रोल रहता है और उनका मतलब कितना प्रतिशत एफर्ट रहता है, तो उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से मतलब स्कूल के अंदर लेकर के चलना चाहिए, बिसाइड्स द ट्यूशन क्लासेस? अपने ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग सेंटर्स को छोड़ करके ये स्कूल का जो रोल है वो कैसा रहना चाहिए? एक्चुअली लेट मी टेल यू, द स्कूल रोल इज द फर्स्ट रोल, है ना, विच प्रिपेयर योर बेस एंड इज द प्राइमरी
base primary role to prepare your base. Actually, I think that schools should give him 100% or more than 100%, that if suppose that someone is financially weak, so after school he is unable to afford tuition classes, Okay, हाँ. so he can pursue his studies in school or prepare his good base, है ना? He should be able to stand himself studies. So I would like to what can I say, that say my point of view that school should provide their proper education. हाँ. Means try their best efforts, बिल्कुल, so best effort. And I think so the middle schools always try their best, because the teacher also belongs from the middle class families ना, they also understand the situation and they do their best. तो ये इनका साफ कहना यही है कि भाई स्कूल प्राइमरी है आपका एडुकेशन के मामले में। अगर आप फाइनेंशियली एक एवरेज इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मे भी हो सकता है कि आप ट्यूशन क्लासेस को अफोर्ड ना कर पाए, क्योंकि ट्यूशन फीस शायद महंगी हो सकती है। अगर आप कोई भी लग्जरियस ट्यूशन में जाते हैं या कोई भी अच्छे ट्यूशन्स में जाते हैं तो स्कूल का फ़र्ज बनता है इतना तो कि वो एक अच्छी एडुकेशन प्रोवाइड करे और सभी बच्चों को। अच्छा, इस एक चीज़ और आदि बहुत प्रॉब्लम है कि जैसे कोई बच्चा स्कूल के अंदर है, ठीक है, और वो स्कूल के अगर ट्यूशन टीचर से कोचिंग नहीं ले रहा है तो इसका इम्पैक्ट कितना होता है? वो अच्छा, तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है? उसका इम्पैक्ट है, मैं आपको लिटरली बताता हूँ, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ उसका इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज हर लोग अपने डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट थिंकिंग से बिलोंग करते हैं। किसी की बहुत ब्रॉड सोच होती है, किसी की बहुत कॉम्पैक्ट सोच होती है। अब होता है किसी में कि दैट यू मे ज्वाइन माई ट्यूशन, आई विल परस्यू यू, आई विल गिव यू मोर अपॉर्चुनिटीज। सो मेरी मार्केट में मैंने देखा है ऐसी चीज़ें हैं, लोगों को दबाना भी लोग चाहते हैं, फोर्स करते हैं अपने पास, बट स्टिल स्टूडेंट्स आपके हाथ में बात है। कोई फोर्स ऐसा तो कर नहीं कि आपको उठा के ले जाएगा, जो बात है आपके हाथ में है। यू शुड गिव योर बेस्ट एफर्ट्स और दैट्स, क्योंकि बोर्ड के अंदर मेरे ख्याल से आपको कोई जज नहीं करने वाला है, और ये तो बिल्कुल नहीं गोइंग टू जज यू, ये बिल्कुल नहीं होगा। और फाइनली एडुकेशन तो मस्ट है कि आपको मतलब लिटरली चीज़ें आनी चाहिए। अगर वो बेस्ट है तो आप वैसे ही ज्वाइन कर लोगे, फोर्स की उनको जरूरत ही नहीं होगी। सही बात है, नहीं है? सही बात। लिटरली अगर आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे तो आप खुद उनके पास जाओगे, सर हाँ, तो थोड़ा और दीजिए हमें। तो अच्छा, जो फोर्स कर रहे हो उनको ज्वाइन करना चाहिए फिर? फोर्स कर रहे हैं ज्वाइन, व्हाट कैन आई गिव माय सजेशन, वो तो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली। तो ये आप अपने हिसाब से देखो, लेकिन मतलब पर्सनली जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आपको समझ में आए, मैं कहूँगा एज अ टीचर कि सबसे बेस्ट प्लेस वही होता है जहाँ पे आपको सच में आपकी एडुकेशन समझ में आती है, आपको पढ़ाई समझ में आती है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सबसे बेसिक चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, सिर्फ चीज़ें करना ही नहीं होता है। तो ये एक मतलब कि अच्छी बात कही इन्होंने। और हाँ, सच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये चीज़ पार्शियलिटी जो होती है ये गलत चीज़ की होती है। अरे पार्शियलिटी तो होती है, वर्थ हो आपको पैसे वर्थ मिल रही है, हाँ, पार्शियलिटी तो होती है, लेकिन फिर भी पार्शियलिटी होती है ना। बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो ऐसी चीजें नहीं देखते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं जो इवन दे सपोर्ट कि चलो ठीक है, आप वहाँ कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा आ रहा है, आप प्रोग्रेस कर रहे हो। तो some tries to that follow us we will follow us, so that's not good ना। ओके, तो आदि अच्छा, अब जो 12th में बच्चे आ रहे हैं, हाँ, ठीक है, जो मोस्ट वेलकम इन 12th क्लास, तो उनको आपका क्या सजेशन है, क्या राय है? मेरी सजेशन ये राय रहेगी, क्योंकि 11th मे बी योर 11th was good was bad, but you should be so serious in your 12th starting, because the results may be gone through your 12th basis, UT, your pre-boards. Government also preparing for this session, ना, that UT is internal, हाँ, बिल्कुल। तो government is breaking, so you should make your best efforts in the class, even small tests or small UT, small pre-boards, everything. हाँ, the school is going to conduct, you should perform your best. Actually, you need to prepare your best base that you can provide them. This is my result. इट मीन्स जो CBSE है वो इस बार आपके यूटीज, आपके हाफ ईयरली, आपके एग्जामिनेशन जो इंटरनल्स हो रहे हैं, उन सभी के रिजल्ट स्कूल से मांगेगी। क्यों? वो पहले से ही प्रिपेयर रहेगी कि यदि इस बार रिजल्ट बनाना हुआ तो वो सिर्फ 12th के बेस पे ही रिजल्ट बनाएगी, आपका 10th और 11th नहीं लेगी। तो इसके लिए वो पहले से ही तैयार हो रही है कि आपके यूटीज और आपके हाफ ईयरली बहुत मायने रखेंगे। इसलिए आपको और ज़्यादा सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए, शुरू से ही पढ़ाई को सीरियस लेकर के चलना चाहिए। अच्छा, 11th में जो बच्चे आ रहे, 10th जो जिन्होंने पास किया है, क्योंकि 10th तो इस बार लगभग बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा, क्योंकि
आपको पता ही है एग्जामिनेशन वगैरह तो हुए नहीं है, और जो कॉमर्स बैक मतलब कॉमर्स को चूज करते हैं पहली बार, ठीक है, तो एक अलग ही फील्ड में आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या सलाह है, इनको क्या सलाह देना चाहोगे कि मतलब आपने जब 11th ज्वाइन किया था, आपने जब 11th स्टार्ट किया था, तो आपकी क्या कमियां रही थी जो ये बच्चे ना करें, जो मतलब 12th में इनको प्रॉब्लम ना आए, तो क्या करना चाहिए कॉमर्स? द फर्स्ट थॉट जो दिमाग में आता है आप 11th में एंटर करते हो, वो तो ये साल तो वी विल डू फन, 12th में हम कर लेंगे, लेकिन वही आपका वो आपको पे ऑफ करना पड़ जाता है 12th में एंड आके आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। मतलब अगर आपने 11th पढ़ाई नहीं करी और आप सोचते हो कि 12th में कर लेंगे, तो वो 12th में आपको बहुत बड़ा खामियाजा हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आई थिंक यू शुड प्रिपेयर योर, आई कैन नॉट से यू शुड टेक फन, है ना, यू शुड टेक फन, बट यू शुड प्रिपेयर ऑल्सो योरसेल्फ फॉर द 12th। एक्चुअली पेंडेमिक सीजन है ना, पेंडेमिक सिचुएशन इज गोइंग ऑन, सो यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर योर बेस फ्रॉम 11th ऑल्सो। The government can be take from here also, na? It means 11th is very important. If you are choosing commerce, na, then it is something different. It means by 10th you are only belongs from the science, physics, chemistry, maths. A small part of economics is there in 10th, but it is very small, only Palampur ki kahani, na? Yeah, literally. And Economics is so small. Yeah, and it is very different from the macro statistics, Indian development, and मतलब वो कहीं से नजर भी नहीं आता है 10th की इकोनॉमिक्स की 11th में इकोनॉमिक्स समथिंग डिफरेंट थिंग, ब्रॉड कॉन्सेप्ट इज ओवर देयर। तो 10th तक आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं होता है। अगर आप 11th 12th में ज्वाइन करते हो तो आपके पास एक नए सब्जेक्ट्स आते हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, you will start loving business. And in 12th management. Yeah, management. You would like to be manager at every place, that I will manage it. So there is lot of fun in commerce. So I think you should pursue this and you can score best in commerce. अच्छा आदि, एक चीज और, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 10th के बाद 11th में आते हैं, थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं ना, ये पर्सनली क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अब सभी लोग मतलब थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं, और ऐसा मतलब मॉडर्नाइजेशन चल रहा है ना कि 11th में आते के साथ ही अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ने लगता है और फिर उसके साथ पढ़ाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब मतलब आप किसी से अट्रैक्शन करते हैं? तो मैं इसके बारे में कुछ सलाह नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ये पिट जाएगा क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पड़ता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को पर्सनल मीटिंग में इसका इम्पैक्ट पड़ता है थोड़ा। वैसे इफ यू आर अ गुड गाय सो यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ, आप परसू कर सकते हो, दोनों चीजें कैरी ऑन कर सकते हो। इफ यू आर टैलेंटेड लाइक आगे की बात बातें होगी। हाँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि देखो 11th एंड 12th बहुत इंपॉर्टेंट है आपके होल लाइफ के लिए। मतलब अगर आप सच में करियर बनाना चाहते हैं तो 11th 12th बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक एवरेज और नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं ये कहता हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये आपकी एक एज है जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। लेकिन एक्चुअल में देखो, मैं खुल के कहूँगा ये चीज़ें होती हैं, सच में आती हैं अंदर से। लेकिन जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ आपके पेरेंट्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जहाँ आप स्टैंड करते हैं, अगर वहाँ से एक बार आप बैठ करके आराम से अगर सोचें तो फिर आपको यही दिखेगा कि नहीं, अभी नहीं, मतलब कि मैं अपना कैरियर बना लूँ। मैं 11th 12th और 11th, मैं लिटरली तो मैं कहता हूँ कॉलेज के अंदर आप जाओगे, कॉलेज के अंदर फुल ऑफ फन करोगे। कॉलेज के अंदर इतनी ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती, 11th 12th का पूरा सिलेबस कॉलेज के अंदर आता है। अगर 11th 12th आपने सच में अच्छे से की है तो आप कॉलेज को अगर नहीं भी पढ़ोगे तब भी आप एग्जाम क्लियर कर लोगे उनके, ठीक है। और आपके जो मायने रखेंगे, मतलब जो रिजल्ट मायने रखता है ना, इन फ्यूचर भी जब रिजल्ट मायने रखेगा, और जो नॉलेज मायने रखेगी वो 11th और 12th की। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अपने आप को थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखाएं पढ़ाई में, वहाँ कंसिस्टेंसी दिखाएं, वहाँ पे अपने आप को डिसिप्लिन रखें, रेगुलर रखें अपने आप को। रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ठीक है, और पर्जुएंस, ये अगर चीज़ें आपके अंदर आ गई तो फिर आप, लिटरली कह रहा हूँ मैं, आप बहुत ही कम एज के अंदर एक अच्छी जॉब ले लेंगे। और एक जितनी कम एज के अंदर आप एक अच्छी जॉब लेंगे, आप मैनेजर वगैरह बन करके बैठेंगे, आप किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर बैठेंगे, तो आप उतना ही अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपने लाइफ को फन कर सकते हो। लिटरली ये चीज़ मैं कहूँगा स्टूडेंट्स को। तो ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। ये तो अभी आंसर नहीं देगा यहाँ पर, मुझे पता है इस चीज़ का, तो और बातें सीमित रहनी चाहिए ठीक है। तो अच्छा आदि, तो एट द एंड, ठीक है, मेरे ख्याल से जो कॉमर्स है वो लव है। या लिटरली आई लव कॉमर्स and with especially Mr. Subham's answer, I loved it so much. Still I'm enjoying this. तो कॉमर्स एक लव है,
ये एक सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, एक स्ट्रीम ही नहीं, ये मतलब बहुत प्यारा सा इमोशन, हाँ प्यारा सा कह सकते हो इमोशन है। और ये इमोशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना बात होगी पैसों की। You will play in lakhs, crores in coffee. So you will starting automatically that I'm a CA, I'm a small CA, huh? हाँ So you will also loving that commerce. Commerce is the best stream and it has very broad concept also in तो future. ये एक चीज़ है आपके लिए। तो आप इस चीज़ को शायद जो भी बच्चे अब 11th या 12th में हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप सीरियस रहें क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्सेप्चुअली काम करते रहे, फन करते रहे, एंजॉय करते रहे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि कोई सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है मेरे ख्याल से। बोरिंग है कोई? अच्छा No. कोई भी सब्जेक्ट ऐसा बताओ जो बोरिंग है कॉमर्स के अंदर। From my point of view, what is boring? Because you are going in new way, new New field, way, है ना? new field. So you always eager to know new things, है ना? New things. And you will get new things. Nothing is old. You will get new things and you are not going to bore. अच्छा मैं आदि से कहना चाहूंगा एट द एंड आप अपने जो जूनियर्स आने वाले 11 12 इनके लिए कोई चीज दीजिए, ठीक है? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है आदि? अब आप इस सेशन को आप एंड करोगे, ठीक है, कैमरे पे, कि आप कैसे एंड करोगे, ठीक है? फिर मिलेंगे अगले संडे टॉक शो के अंदर इन सबसे, ठीक है? Sure. और आप एंड करोगे, ठीक है? मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है? क्या बोलूं? ओके मैं जाऊँ फिर? Okay, you can. ठीक है। अच्छा मैं माइक देता जाता हूँ तुमको, ठीक है? ये थोड़ा सा माइक में निकाल लेता हूँ। हाँ बिल्कुल निकालो, मैं आप हटा देता हूँ। ठीक है, अब तुम्हें एंड करना है। देखो कैसे एंड करते हो तुम। अब end तो कैसे ये करना हाथ है? में लेके करो, ठीक है? कोई इशू नहीं है। हाँ तो अब आप लोगों की ज़िंदगी की दौड़ मेरे हाथ में है और मैं अब आप लोगों को बताऊं, पूरी मौज लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे नहीं, पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ना, मेहनत करना। और मैं बता रहा हूँ कॉमर्स इज़ वेरी बेस्ट स्ट्रीम, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बी विद मी आदि।